चलो लेट अस स्टार्ट। और लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे को मैम नहीं रहती है तो तुमको लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट। Sixth one is the explanation of what canonical structures are. Canonical structures are valid DBT structure having localized bonds. ठीक है। और resonating structure क्या होता है? That is really existing structure may not be complying with the laws of DBT. ठीक है, या even laws of MOT. ठीक है, क्योंकि there is partial bonding which is happening over here. I mean there out to be partial bonding which we see in reality, which cannot be explained on the basis of either of the two. Seventh one is during resonance, electrons are delocalized around a fixed set of nuclei. Nuclei से जितने न्यूक्लियस के बीच में या जितने एटम्स के बीच में delocalization होता है that is fixed, and as that is fixed, there is no net charge creation on overall molecule. मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन टहलते हुए 5 एटम से बाहर निकल गया। मतलब 5 एटम्स पे अगर वो टहल रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, टहलने का मतलब तो डीलोकलाइज होता हुआ 5वें एटम से वो बाहर नहीं निकल जाएगा, इट विल रिमेन ऑन दीज 5 एटम्स ओनली। ठीक है, therefore as no electrons is leaving the system, therefore no charge can or no net charge can be created on the system. That's point number 7. That means जो भी net charge उसके ऊपर स्पीसीज के ऊपर रहेगा, that net charge is going to be there. 8th point was resonating structures में the one which is most stable या canonical structure which is most stable having lowest potential energy. चलिए resonance hybrid जो होता है ना या real structure is going to look more like it in terms of electron distribution, in terms of bonding, as well as in terms of reactivity. ठीक है, प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी बॉन्डिंग पैटर्न्स के ऊपर the bonding pattern of that most stable or lowest potential energy canonical structure will be followed or will be very close to the resonating structure. Criteria for deciding or criteria for comparing energy of canonical structure, ये पहला point discuss किया था. If there is an extra pi bond which is being formed, that is going to provide a decent amount of stability to the canonical structures. ठीक है, apart from this pi bonding, and इसमें सब क्लॉज ये है, it doesn't matter उस पीरियड में उस pi bond formation के टाइम पर it may happen कि किसी जगह पे like मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसमें चला जा रहा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है उसके वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद. These things do not account much for the instability. In fact, इनको ओवरपावर करके भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है that provides a lot of very significant amount of stability to the canonical structure. Next point in this was
This was explained in light of that. The second point is any structure having aromatic rings. ठीक है? Any structure, any canonical structure having aromatic rings are more stable. ठीक है? और इसमें दूसरा पॉइंट ये है सब पॉइंट सेपरेट बेंजोनाइट रिंग्स आर मोर स्टेबल देन फ्यूज्ड बेंजोनाइट रिंग्स. सेपरेट बेंजोनाइट एंड फ्यूज्ड बेंजोनाइट क्या होता है? सबसे पहले एरोमेटिक क्या है? ठीक है, और एरोमेटिक का मतलब होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉइंट. दो चीजें मैं अभी बता देता हूँ, आगे एरोमेटिसिटी भी डिस्कस करा होगा और नहीं करा होगा तो कर दो. एरोमेटिक मीन्स होता क्या है? एक्सटेंसिव delocalization of electron density, sorry, by electron density. Due to favorable condition. The favorable conditions are number one, planar structure. The entire molecule should be plane or should lie in single plane. Single plane. Second, it must be cyclic. Third point is must have foreign plus 2 foreign plus 2 delocalizing electrons. Inner cyclic कोई भी चीज अगर इन तीनों सिचुएशन या तीनों कंडीशंस को फॉलो करती है, ठीक है, तो उसको लोग एरोमेटिक बोलते हैं. एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज दे हैव दो चीजें इनके पास होती हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल. स्ट्रॉन्ग स्मेल इज कॉल्ड एरोमा, इसलिए एरोमेटिक नाम आया. ठीक है, और दूसरा चीज एक्सटेंसिव लोअरिंग ऑफ एक्सटेंसिव और स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है, एक्सटेंसिव स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब है जैसे डीलोकलाइजेशन, जब नॉर्मल डीलोकलाइजेशन होता है
या नॉर्मल रेजोनेंस होता है, तो द लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैपेंस बाय 3 या 4 सेंटर अगर इन्वॉल्व है ना, तो लोअरिंग अराउंड 4 से 6 किलो कैलोरी की होती है, ठीक है। या 4 भी मैक्सिमम 2 से 4 किलो कैलोरी के बीच की रहती है। अगर 4 के बाद 6 एटम्स अगर इन्वॉल्व है डिलोकलाइजेशन में, तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, अराउंड 7 से 8 हो जाता है। इज दैट ओके? कितना होता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी लोअरिंग कितनी होती है? पहले वाले केस में अगर 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं ओपन चेन के, तो अराउंड 2 से 4 किलो कैलोरी, और अगर 6 एटम्स इन्वॉल्व है ओपन चेन के, तो अराउंड 6 to 8 किलो कैलोरी, ठीक है। साइक्लिक वाले अगर 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं डिलोकलाइजेशन में, जैसे यहाँ पे डिलोकलाइजेशन जो है ना, दिस वन, द डिलोकलाइजेशन एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 2 to 4 किलो कैलोरी, ठीक है। इस तरह का अगर मैं साइकिल बनाता हूँ, ये डबल बॉन्ड, इसकी डिलोकलाइजेशन एनर्जी अगेन 8 किलो कैलोरी के राउंड अबाउट है, ठीक है। हाउएवर ये तीसरा वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे बन जाता है, ये एक्सपेक्टेड है 2 पर 8 है, तो 3 पे 12 किलो कैलोरी अगर मिल रहा होता हमको स्टेबलाइजेशन, तो कोई बात नहीं थी, नॉर्मल था, वी वुड नॉट हैव so bothered about it, or would probably not have named it differently altogether. But ये तीसरा वाला आ जाने के बाद इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है, that increases to around 50 किलो कैलोरी, exactly 49, 8 से 49. uh, are we guys getting this point? That is what resonance is. हाँ, ठीक है। That is happening because of extensive resonance and obviously a favorable condition, और इस extensive delocalization या extensive resonance या very high stabilization energy को represent करने के लिए, या फिर ऐसे बोले एक स्पेशल क्लास ऑफ रेजोनेंस, एक स्पेशल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए, वी हैव गिवन और वी हैव कॉइन्ड दिस वर्ड एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, all aromatic compounds are extensively delocalized, they have delocalized ring, और ये रिंग के और भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे इस रिंग का हर कार्बन इक्विवेलेंट होता है, कोई भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सारे में सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी, और कई एक सारे फीचर्स है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट ही जो है इसका फंडामेंटल जो है वो यही है कि इसके अंदर एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी से 2 बॉन्ड पे मैंने बताया 8 किलो कैलोरी, तो 3 बॉन्ड पे 12, 13, 14 होता है, तो वी वुड नॉट हैव बॉदर्ड। बट यहाँ पर तीसरा ये डबल बॉन्ड आ जाने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के से अराउंड 49 किलो कैलोरी कम हो जाता है, 49 किलो कैलोरी कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 50 किलो कैलोरी कम हो जाता है, ठीक है। दैट इज मैसिव अमाउंट, मतलब 50 किलो कैलोरी का मतलब 200 किलो जूल, ये लगभग इतना होता है जितना एक सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल की, उतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है इस पूरे सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये तीसरा बॉन्ड आ गया, ठीक है। दिस स्पेशल फेनोमेना इज नोन एज एरोमेटिसिटी। हाँ बोलो ना।
सर वो आपने जो लिखा था सर वो एक बार दिखाओ ना इससे पहले। Yes. तो इसके पहले वो लिखा हाँ सर होता है। Normal delocalization. Stability on across 4 kilocal per pair of delocalizing delocalizing electrons. Aromaticity में stability of approx 10 से 16 किलोकैल per electron pair be localized. शॉर्ट हो गई अलग के रीडिंग से होता है नाम के साथ की नंबर ऑफ रीडिंग्स This is called aromatic. It's benzene, and any structure or molecule having benzene ring will be called as aromatic. I mean that benzene ring itself is called aromatic. ठीक है? और बेंजीन में बेसिकली ये है कि सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं और सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से एक एक का हर कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल जो होता है प्योर पी ऑर्बिटल होता है, इसका प्योर पी ऑर्बिटल और इसका प्योर पी ऑर्बिटल, इसका प्योर पी, इसका प्योर पी, सबके प्योर पी जो है सर एरो मैं
क्या क्या? सर वो एरोमेटिसिटी का मुझे डेफिनेशन। सर वो नीचे था ना, स्टेबिलिटी ऑफ अप्रॉक्स 2016 किलो कैलोरी। तो ये कंडीशंस जो है, चारों तीनों कंडीशंस, एक तो इस मॉलिक्यूल में फुलफिल होता ही है, बट इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ कार्बन ही होगा तभी पूरा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्म रहते हैं पेयर ऑफ, एंड इसमें अब ये भी रहते हैं जैसे uh, हाँ, छह मेंबर का कार्बन चेन है, साइक्लिक कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। और छह मेंबर से कम के भी होते हैं, जैसे ये एक सिस्टम है, डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसमें यहाँ पर दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज करते हैं, इसमें खाली ऑर्बिटल होते हैं और वो यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं। दिस इज साइक्लोप्रोपेटिनाइल कार्बोकैटायन, ये भी एरोमेटिक होता है। आप बोलिए ना, क्या हुआ? हेलो, हाँ, आई वाज सेइंग दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, it is aromatic with just two electrons. ठीक है, there is going to be another aromatic species which is going to look something like this. ये 7 कार्बन का साइक्लिक चेन होता है एंड यहाँ पर एक कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, so this is called troponium ion. तो this is also aromatic, बट मतलब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही डीलोकलाइज कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं। देयर इज अनदर एरोमेटिक सिस्टम व्हिच लुक्स लाइक दिस, पेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन। ठीक है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एक लोन पेयर है जो डीलोकलाइज करता है। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है और ये भी एरोमेटिक है। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है बट 6 कार्बन नहीं है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है बट 6 कार्बन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 कार्बन तो है ही नहीं। These are called non-bentonite aromatic system. Non-bentonite aromatic system. But वो बहुत सारा फैक्टर है। साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, you will come to know the names and all in due course. अभी के लिए मेरा पॉइंट ये था, बेंजीन न्यूक्लियस क्या होता है और नॉन बेंजीन न्यूक्लियस क्या होता है, नॉन बेंजोनाइड्स क्या होता है और बेंजोनाइड्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन बेंजोनाइड्स में और भी चीजें आती हैं, जैसे हेट्रो सिस्टम में यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, या 6 मेंबर ही हैं बट एक कार्बन को नाइट्रोजन से हमने रिप्लेस कर दिया। Is this okay? और
ठीक है। सो ये भी नॉन बेंजोनाइड है और ये भी नॉन बेंजोनाइड है। खैर ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, बट ये नॉन बेंजोनाइड, दोनों ही नॉन बेंजोनाइड कैटेगरी में आते हैं। इसमें 6 टोटल एटम्स हैं, बट एक नाइट्रोजन है इंस्टेड ऑफ कार्बन, तो therefore this is also non-bentonite, and this is over here, this is the only bentonite, ठीक है। अब बेंजोनाइड या बेंजीन के बाद दूसरी चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूज्ड रिंग एंड नॉन फ्यूज्ड रिंग्स। तो दिस इज सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है, और दिस इज फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, और ये एक फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है। ओके, दिस इज बेंजीन, और नैपथलीन बॉल्स जो होते हैं, दैट इज दिस, and firstly phenanthrene of benzene, nitrogen, anthracene, fumigation. So these rings are structure, ठीक है, नाम इसका मुझे यही लग रहा है स्पेलिंग, बट मे बी यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, आई डोंट 100% रिमेम्बर इट, बट ठीक है, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। लगभग प्रोनाउंसिएशन यही है, फेनंथ्रीन नहीं होता है इसका, बेंजीन, नापथलीन, एंथ्रेसीन एंड फेनंथ्रीन। सो these are called, ये तीनों ही जो है they are part of fused bentonite rings. When two benzene rings are fused together, sharing 2 carbon atoms between them, they are called fused bentonite, ठीक है। So these are example of fused bentonite rings, ठीक है। नॉन फ्यूज का मतलब क्या हुआ, ऐसे रिंग्स दो अलग अलग, ठीक है, या 3 अलग अलग रिंग हो, separated like this. So the point is, this is non-fused rings, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिंग और इस फॉर्म में या इस फॉर्म में 3 रिंग्स, this is going to be less stable compared to this. Is that okay? Hello? Yes, sir. ठीक है।
So separate benzoyl rings are more stable than fused benzoyl rings. और डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो होती है इनकी, उनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैं बताया इसका 49 किलो कैलोरी है। जब दो फ्यूज्ड होते हैं तो इनका ओवरऑल स्टेबलाइजेशन जो रहता है दैट बिकम्स roughly around 80 किलो कैलोरी, 80 to 82 किलो कैलोरी रहता है। और तीन रिंग जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी जो है दैट फॉल्स डाउन टू रफली 100-110 के आसपास की आ जाती है। यानी पर रिंग स्टेबिलिटी जो है दैट हैज फॉलन डाउन। यहाँ पर रिंग स्टेबिलिटी 49 किलो कैलोरी की है, यहाँ पर अराउंड 42 किलो कैलोरी की हो जाती है, और यहाँ पर उससे भी कम होकर के अराउंड 37-38 किलो कैलोरी की हो जाती है पर रिंग। इज दैट ओके? सिंगल तीन रहा तो 49 दैट विल मेक अराउंड 147 किलो कैलोरी का स्टेबलाइजेशन रहेगा। ठीक है ना? दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड ओवर हियर। इज दैट ओके? स्ट्रक्चर बी में तो इसमें बस ये है कि अगर सेपरेट बेंजोनाइल रिंग्स, बेंजीन रिंग अगर फॉर्म हो रहा है, एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रहा है किसी एक स्ट्रक्चर में और किसी में नहीं हो रहा है कैनोनिकल में, तो the one having benzene ring will be more stable and the one not having benzene ring will be less stable. Number one. Number two, separate benzoyl rings अगर है they are going to be more stable than fused benzoyl rings. ठीक है? और बेंजीन रिंग क्या होता है, उसको कैसे जज करते हैं, ये बेसिक आइडिया मैंने दिया है आप लोगों को। We will deeper into it maybe at the end of resonance. ठीक है? And that will also include some parts of basic this thing क्या बोलते हैं, basic organic chemistry. See, if update of all atoms are fulfilled, then the structure with negative charge closer to most electronegative atom is more stable, and a structure with positive charge closer to least electronegative atom is more stable. ठीक है? What it means is, अगर सारे atoms के कोई एक structure है जिसमें हर atom का octet पूरा है, ठीक है? ऐसे सिनारियो में अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्लोजर है या उसके ऊपर है, एंड पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है या उसके क्लोजर है, these scenarios are going to have better stability. ठीक है? But this is true only if all the atoms have their octet fulfilled. अगर ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं है और ऐसे सिनारियो में किसी मतलब सारे एटम का ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं है एंड ऐसे सिनारियो में किसी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, that doesn't mean the system will be stable, or this may not even form a valid canonical structure. Is that okay? क्योंकि उस सिस्टम में अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा हुई, बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी हैं, दैट विल मेक द सिस्टम हाईली अनस्टेबल। वेयर एज सारे एटम्स के ऑक्टेट पूरे हो एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज या उसके क्लोज नेगेटिव चार्ज और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नियर बाई में या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज गोइंग टू गिव अस अ स्टेबल सिनारियो और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। विथ एग्जांपल we have RC double bond O CH2 minus, ठीक है, and RC double bond CH2 O minus, ठीक है। Now these are two canonical structures, 1 and 2.
इन दोनों में which one do we expect to be more stable? 1 and 2 दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी क्या सारे एटम्स के इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है. ये निगेटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है. दैट इज व्हाट हैपनिंग. हेलो. Negative charge is delocalizing from CH2 minus to oxygen. Is that okay? Yes. Yes, sir. कहाँ Cl है? ठीक है, चलेगा. अभी CH को पता चल गया ना. वेरी गुड. नाउ पॉइंट इज इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वेदर माय ऑक्टेट इज फुलफिल्ड और नॉट. विल ट्राई टू हैव अ लुक ओवर इट. डबल बॉन्ड यहाँ पर यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हो गया. 2 लोन पेयर रहते हैं. ऑक्टेट पूरा है. इस कार्बन के 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर. इसका भी ऑक्टेट पूरा है. इस कार्बन का 2 यहाँ पे और 4 इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 4 + 2 6 और ये नेगेटिव चार्ज जो दिख रहा है that is because of another lone pair of electrons which are there in one of the orbitals. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Okay. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. So the octet of all 3 atoms और इधर के octets पूरा रहेंगे ही रहेंगे. So I'm more concerned about these 3 atoms क्योंकि इन्हीं के बीच में delocalization हो रहा है. यहाँ पर ये फुलफिल्ड है. यहाँ पर अब देखने की कोशिश करते हैं. 4 इस कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन. इस कार्बन के लिए 2 इधर, 2 इधर और 4 इधर, 8 इसके लिए हो गए. ऑक्सीजन के लिए 2 इधर और 6 इसके ऊपर, टोटल 8 हो गए. 4 पहले से था, 2 और एक्स्ट्रा आ गया, इसी वजह से निगेटिव चार्ज आ गया. तो ठीक है, ऑक्टेट दोनों के ऊपर फुलफिल्ड है. दैट्स गुड. नाउ negative charge is residing on which atom over here? It is residing on carbon, and in this structure it is residing on oxygen. ठीक है. Which is more electronegative, oxygen or carbon? Oxygen. Obviously oxygen. So which structure is expected to be more stable? It has to be second one, right? Because negative charge is much closer to the most electronegative atom. Clear hai? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Similarly 1 Sir, and 2. second case में भी second. हाँ, second case में भी second ही रहेगा, more stable. Right. Sir, because of the same reason. Because of the same reason. ये जो R होता है, R is alkyl, aryl. अल्काइल सिस्टम या अराइल सिस्टम? सर फिर एक बार आपने कुछ लिखा था, मतलब कि लॉन्ग कार्बन के. हाँ, वही उसी को अल्काइल सिस्टम बोलते हैं. अल्केन से अल्काइल. So that was point C. Next one is वेट करते रहते हो. Next point is if any canonical structure develops charge during conjugation or resonance, that is delocalization. Okay. We may use word delocalization. Delocalization. From one form to other,
then one having charges will be less stable. If both structure have charges, then if the charge separation is more, the canonical structure is less stable. Charge separation is more, the canonical structure is less stable. If charges are close, the canonical structure is less stable. Are we getting this point? मतलब ये कि दो कार्बन एटम्स है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, और इधर एक्चुअली कॉन्जुगेशन इनमें हो रहा है, इधर भी और एटम्स हैं जिनके जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, काइंड ऑफ दिस। ये ट्रैवल होकर के यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली डबल बॉन्ड यहाँ और ये निगेटिव। तो यहाँ पर दो एटम्स विसिनिटी में है, ठीक है, और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी मच अनस्टेबल, ठीक है, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी मच अनस्टेबल कंपेयर्ड टू द अदर इक्विवेलेंट सिस्टम, जहां पर ये चार्ज इसके ऊपर आ गया और ये चार्ज इसके ऊपर आ गया। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? C single bond, C double bond, C single bond, C double bond, C single bond, C negative negative. This system is, अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर मुझे लिखना होगा, ये एक वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, बट ये वाला इनवैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर होएगा, because this one is going to have very high potential energy. Is that okay? Yes, sir. Okay. सर वो हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला क्यों होगा? क्योंकि दो निगेटिव चार्जेस आजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर, राइट, दीज टू आर इन फैक्ट टू बॉन्डेड कार्बन्स, ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू रिपेल ईच अदर। इज दैट ओके? बोलिए। Yes, sir. हाँ, ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है क्योंकि चार्जेस आर फार अपार्ट, ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी होता है, जनरली ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस सेम टाइप ऑफ चार्जेस के लिए रूल है। अब बात होती है कि अगर अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं तो क्या होगा, तो अपोजिट चार्जेस वाले में केस ये होता है, जैसे यहां पर भी अपोजिट चार्जेस भी अगर पास में है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जनरली पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस तब क्रिएट होते हैं जब आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के चार्ज सेपरेशन क्रिएट करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक सिस्टम के ऊपर या एक एटम के ऊपर मूव कर जाते हैं, तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज और पहले वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ बॉन्ड इज बीइंग डिस्टॉर्टेड टू क्रिएट द चार्ज। नाउ बॉन्ड को ब्रेक करके अगर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, that is itself a highly unstable thing which we are doing, right? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी होगी और उस एनर्जी को देने के बाद ही चार्ज क्रिएशन हो रहा होगा। That means stability of the system has been decreased, right? Or potential energy of the system has gone up. Now ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है मैंने, जैसे ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, देयर इज नो चार्ज ऑन दिस सिस्टम। यहाँ पर पहले सिस्टम में चार्ज, पहले डिलोकलाइजेशन में, एक्चुअली दिस इज नॉट डिलोकलाइजेशन, दिस इज चार्ज सेपरेशन व्हिच इज हैपनिंग। द इलेक्ट्रॉन is getting shifted towards this carbon,
creating a negative charge on it and a positive charge on the previous carbon. Then this negative charge is getting delocalized to the other end. Now 2 or 3 में obviously 3 is going to be a valid canonical structure. Charge separation है, ठीक है, charges are far apart, whereas second वाला जो होगा that is not going to represent a valid canonical structure for the simple reason इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है, स्पेशली इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा रहेगी, इसके भी कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा रहता है. Are we getting this point? In fact, charge Yes, sir. दूर आकर के it is creating stability. So that's one point. So third number is going to be a valid canonical structure. First one is a valid canonical structure, but second one is not a valid canonical structure. ठीक है. Similarly, दूसरे वाले तरफ में again वही delocalization, इस तरफ इस बार charge create हो रहा है plus minus, and it's forming this particular thing. ठीक है. This one is going to be non-stable, non-valid canonical structure due to high potential energy, whereas this one is going to be a valid canonical structure. ठीक है. So we can take down these points and these examples. Is that okay? Yes, sir. इसका दूसरा वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो ये भी रहेगा, माइनस ये एक वैलिड रहेगा, ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा, बट ये इनवैलिड होगा. बात समझ में आ रही है? एक और वैलिड स्ट्रक्चर देखना है इसका, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये भी एक वैलिड स्ट्रक्चर होएगा. दिस इज इनवैलिड. I hope I made myself clear. So you have two examples and a theoretical point. You may note it down. और अनस्टेबल. सो इस वाले केस में इनफैक्ट इसका कोई भी वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है. दैट इज व्हाट बेसिकली आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू दिस पॉइंट. अब ऐसे में कोई भी ऐसा एग्जांपल यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है और इनमें से किसी भी एक पॉइंट को अग्री नहीं करता है या जैसे ई पॉइंट को अग्री करता है, तो ऑब्वियसली वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा. हाँ बोलिए. सर द लास्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सो वो नहीं समझा मुझे. कौन सा? ये वाला? which one are you talking about? So the last one, मतलब कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट. ये वाला? बाजू वाला, राइट वाला. ये वाला? उसके बाजू वाला. ये वाला? हाँ हाँ सर. ठीक है. और इनमें से कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है. 1 2 3 4 ये और ये 3. सी 2 में पाई बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज सेपरेट हुआ, यहाँ भी पाई बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज सेपरेट हुआ. चार्ज का सेपरेशन बाय ब्रेकिंग अ पाई बॉन्ड is definitely a unstable scenario, right? और 2 बॉन्ड के ब्रेक करके अगर बन रहा है तब तो और भी ज्यादा अनस्टेबल है.
ठीक है. So this is unstable because of two reasons. दो pi bond break करके और चार्ज क्रिएट हो रहा है, और दूसरा एक सिंगल कार्बन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है. So both of these reasons make fourth structure a highly unstable structure. Highly unstable structure. Is that okay? अब इन स्ट्रक्चर को एनालाइज करना हो तो 2 and 3 will have greater energy than 1 and 4 will have greatest energy. या 4 का एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंड एंड थर्ड का, और सबसे कम फर्स्ट का. Is that okay? Yes, sir. Next point is structure having like charges on adjacent atom. ठीक है, like charges on adjacent atoms are definitely not something which is desired. तो वो ऊपर भी हमने कर लिया है. You can note it. अगर ऐसा सिनारियो होता है then that is definitely not a valid canonical structure. सर वो आप एरोस क्यों क्या? बताने के लिए हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर क्या जा रहा है वो बताने के लिए. हाँ, obviously the electron is getting migrated to this. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के माइग्रेशन को हम लोग एरोस इंडिकेट करते हैं. सर वो जो ई पॉइंट है वो Next point, structure having electron deficiency, that is incomplete octet, and 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 most electronegative structure having electron deficiency along with along with most electronegative atom carrying positive charge. Sir, Hmm. sir, then
मतलब ये पॉइंट के हिसाब से जो लास्ट वाला जो पेज में जो एग्जांपल था उसमें वो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था सर वो भी अनस्टेबल होगा ना? एक सेकंड, सर हाँ क्या बोल रहे थे आप बोलो। एक सेकेंड, last- एक बार मुझे और थोड़ा सा मॉडिफाई, स्ट्रक्चर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी yes it is open. Hello, oh see I'll you're having electron deficiency. Actually ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है ना तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, अदरवाइज जस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is sufficient reason or to make a structure unstable or to make to give instability to a structure। हाँ, अब कुछ डाउट पूछ रहे थे हर्षित तुम कि पिछले वाले का कुछ तो है, क्या है? हर्षित हर्षित अखर वो आपको भी कोई डाउट था? सर मेरा नहीं था। हर्षित का ही था ना उसने, लेकिन पूछा क्या था, कुछ ध्यान है तुमको? नहीं सर। कुछ तो पिछले वाले का स्ट्रक्चर का वो बोल रहा था, क्या बोल रहा होगा? सर हाँ वो कुछ तो वो चार्ज पास है सर, वो ऐसा कुछ तो बोल रहा था। हाँ, पिछले वाले किसी स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेकर के वो बोल रहा था कि उसमें सर वही हो रहा है, तो आई थिंक इसके बारे में बोल रहा होगा वो, नॉट वेरी श्योर। हेलो सर, हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तुम्हारे, माइक वाला problem। हाँ ठीक है बोलो अभी। सर वो फर्स्ट वाला। कौन सा फर्स्ट वाला? ये वाला? हाँ सर। नहीं, इसमें कहाँ डिफिशियंसी है? ऑक्सीजन डिफिशिएंट नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, this oxygen is not electron deficient, it has 8 electrons, is that okay? से ठीक है ना? और क्या बोल रहे थे तुम? और भी कुछ था पॉइंट ऑफ कंटेंशन? सर वो सेकंड और थर्ड वाला, उसमें मतलब ये वाला पॉइंट क्या एप्लीकेबल होगा ना? सेकंड और थर्ड ये दोनों? हाँ सर। नहीं, इसमें भी वो पॉइंट वैलिड नहीं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज नॉट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन एनी ऑफ दीज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये निगेटिव चार्ज आने का मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में, इन लोन पेयर। यस सर। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके, सो ऑक्टेट तो फुलफिल हो गया ना। हाँ, यहाँ पर
और नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑक्सीजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हियर आल्सो, though it is having positive charge but it is not electron deficient, और ऐसे ऑक्सीजन्स आर फेयरली स्टेबल, ठीक है, they are fairly stable. It is unstable because of some other reason, and the reason is donation of electron, जिसकी वजह से a positive charge is being created on oxygen atom which is in vicinity to this positive charge, and therefore this structure is going to be an invalid structure. Is that okay? Yes, sir. Okay, let me go back to this phase. Okay, note down this point and then obviously these structures, and then we will discuss the point. Structure having electron deficiency and or on most electronegative atom and or most electronegative atom carrying positive charge, then it will be highly unstable canonical structure. अब यहाँ पर दो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है और निगेटिव चार्ज यहाँ, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गेटिंग लोकलाइज्ड ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और दूसरे केस में मूवमेंट जो है वो उल्टा हो रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर आ रहा है और ये पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है कार्बन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जा रहा है और साथ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. Now that makes this structure a highly unstable structure, and this will not be considered as a canonical structure. Is that okay? क्या? हाँ बिल्कुल. सी, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है एक्रोलीन, ठीक है, और इसके अंदर में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. नाउ ये जो माइग्रेशन बॉन्ड्स का दिखाया गया है दैट इज टेकिंग प्लेस, मतलब डबल बॉन्ड इज शिफ्टिंग बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. Asna, you want to say something? No, sir. Okay. So the pi electrons are shifting between from first carbon and second carbon to second carbon and third carbon, and the pi electron between carbon and oxygen is shifting on oxygen, creating a negative charge on oxygen and a positive charge on this first carbon. तो एक माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये है. दूसरा माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी हो सकता है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में है और कार्बन कार्बन वाला इस कार्बन के ऊपर सेंट्रलाइज हुआ है, जैसा पहले हो रहा था इस वाले स्ट्रक्चर में. लास्ट वीक पर हम लोगों ने देखा था ना दिस वन, ठीक है. एक बार ये इस तरफ आया और ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरे बार उल्टा माइग्रेशन हुआ. सो एक बार इस तरफ माइग्रेशन विच इज क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर, दूसरी बार इस तरफ से माइग्रेशन उल्टा, सच दैट पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाए और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए. Now the argument is the second structure which we are creating, this structure, the red highlighted structure, this is highly unstable, and the reason for its instability is positive charge being carried by electron deficient carbon atom, ठीक है, as sorry oxygen atom.
oxygen atom is highly electronegative, yet it has to lose its octet first of all, and then because of that it is acquiring a positive charge also. That is where things are going awkward. That is not possible with oxygen. ठीक है, वो सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, उसको उससे कौन इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा? So now its pi electrons getting shifted to some other atom, and at a time when it is itself not its octet is not fulfilled, that is highly undesirable condition. ठीक है. Further, we have this carbonate system. We started this discussion with this carbonate. Carbonate is again with us. So we have three valid canonical structure of carbonate ion. The fourth one is invalid. ठीक है, the fourth one is invalid. Fourth one वाले में invalidity for the reason is given over here. Charge separation when the system is already having charge. ठीक है, that is something which is not reasonable or not generally likely to happen. Last, this, not this. This one is called, actually ये minus नहीं है. इसका नाम बताया था मैंने थोड़ी देर पहले. इसका नाम बताया था क्या मैंने? आपने बोला था कि खाली लेस होता है बाद में। पेरिडीन. ठीक है, पेरिडीन में ये है कि जैसे हर जगह पे लोन पेयर को शिफ्ट करा दे रहे हैं, तो हर जगह पे या कहीं कहीं पर हम जैसे ऑक्सीजन वाले केस में इसके लोन पेयर को मैंने शिफ्ट कराया यहाँ पे. जब ये हाइड्रोजन एब्सेंट था तब लोन पेयर को इजीली शिफ्ट करा रहा था मैं. ठीक है, सिमिलरली क्या या ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन आई इजीली शिफ्ट इट टू मेक दिस स्ट्रक्चर एज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और मतलब ये एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा कि नहीं. ठीक है, द पॉइंट इज इसके दो वैलिड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यही होते हैं, ये दोनों. ठीक है, this electron does not participate in delocalization, it never does. ठीक है, अगर ये जाता है डिलोकलाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो डिलोकलाइज होता है,
यहाँ पर निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है और ये नाइट्रोजन जो होगा दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स होने की वजह से इट विल बिकम sp हाइब्रिडाइज्ड। दैट ओके। और sp हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि नाइट्रोजन पर ये सिस्टम जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन सिस्टम बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को? सर आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। राइट, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड्स लीनियर हो जाने चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट परमिटेड। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट परमिटेड until unless you have at least 10 कार्बन सिस्टम। ठीक है, 9 और 10 कार्बन सिस्टम जब तक नहीं है आपके पास तब तक दिस स्ट्रेट लाइन बॉन्ड इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके? Because of this, the lone pair of electrons on pyridine, nitrogen of pyridine does not participate in resonance, whereas whereas there is no whereas। वो दूसरा एक होता है पायरॉल होता है, पायरॉल 5 मेंबर रिंग होता है, उसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देता है। पायरॉल इज समथिंग कॉल्ड दिस। और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन सॉरी हाइड्रोजन ले रहे हैं। देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन के बगैर नहीं होएगा। 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन फॉर्म करेगा और एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स करते हैं लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं पार्टिसिपेट। इसके करने की वजह से ये sp2 हो जाएगा और ऑर्बिटल्स सारे के सारे प्लेनर हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एंड साइक्लिक वगैरह सारे कंडीशन फुलफिल करेगा। ये भी एरोमेटिक बन जाएगा, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक। Okay, noted. Yes. The net charge on all resonating structure must be same. We should not make any resonating or canonical structure जिसमें total charge जो हो वो different हो। All valid canonical structure will have or must have same number of paired and unpaired electrons. Sum of bond pair and lone pair must be same in all canonical structures.
So between Bond pair and lone pair. Is that okay? Now, must have same number of bond pair and lone pair. So we can count bond total number of bond pairs. One bond pair, two bond pairs, three bond pairs. Lone pair A. So एक दो तीन एक चार एक पाँच टोटल काउंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज 5. इस स्ट्रक्चर में अगेन 2 + 2 4 + 1 5. सो जो भी वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे दे आर ऑल गोइंग टू हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर्स. यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं single electron on this and single electron on this. The number of bond pair and lone pairs in this structure is different from the rest of the structures, and therefore this is not going to be considered as a valid canonical structure. Is that okay? There is something called free radical. Free radical क्या होता है? जब कोई भी bond ब्रेक करता है और एक तरफ उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही एटम के ऊपर आ जाए. दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर एटम. ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड अगर कुछ ऐसे ब्रेक करे सच दैट एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए बी के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए, इस टाइप के सिस्टम को वी कॉल फ्री रैडिकल. We call them free radical. ठीक है. Now this is a free radical system जहाँ पर the double bond has actually broken down as a single electron और ये फिर migrate होकर के यहाँ पर आ गया और double bond यहाँ पर आ गया. Now this is definitely not infeasible canonical structure, because the energy over here is going to be the potential energy is going to be much higher compared to any of these structures. ठीक है. Why it is higher? It is higher because a bond has been broken such that both its electrons are going to different atoms. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड होना है अलग अलग एटम पर. दिस जनरली टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन एंड दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक डिसोसिएशन. होमोलाइटिक डिसोसिएशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर्स कंपेयर्ड टू हेटेरोलाइटिक फ्यूजन. ठीक है. फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कंपेयर टू हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन जहां पर आयंस को क्रिएट होता है. डिफिकल्ट प्रोसेस है मतलब ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी. इफ इट इज गोइंग टू रिक्वायर मोर एनर्जी दैट मींस इट विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल. इज दैट ओके?
सो कहीं पर भी अगर फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी एंड देयरफॉर इट कैन नेवर बी ऑफ सेम पोटेंशियल एनर्जी एज लाइक अगर आपके पास एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड को ब्रेक करके आप फ्री रेडिकल बना रहे हैं, तो द टू सिस्टम कैन नेवर हैव इक्वल or almost, I mean, they are going to differ much on potential energy in terms of potential energy. Is that okay? And उस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि चूंकि सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. Note this down. तो वो फोर्स का होता कहाँ पे है राइट वाले बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 है और उधर बॉन्ड पेयर 4 है. यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस सॉरी 5 है बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5. Noted. Yes, sir. Next point is all valid canonical structure must be a bona fide Lewis structure. Bona fide Lewis structure का मतलब क्या होता है? It must be valid as per Lewis dot structure. ठीक है, मतलब atoms के octet पूरे हो रहे हो. There must not be expansion of octet where it is not required. ठीक है, or not sustainable. For example, this case again carbonate ion. There is a possibility that this oxygen, अगर हम कहाँ पे बोनाफाइड को मॉडिफाइड बोले, हर्षित हर्षित नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी. आई एम अनेबल टू सी, सॉरी आई एम अनेबल टू हियर यू. हाँ, हेलो हर्षित. नहीं, अभी भी नहीं आ रही है. Carbon does not have vacant d orbital, hence it cannot form expanded octet. C atom do not have vacant d orbital, hence can't
ये बेसिकली फॉस्फेट आयन है PO4 3 PO4 3 all the valid canonical structure has been written down. This entire molecule is coplanar. Oxygen, all the four oxygens and phosphorus, they all lie in a plane, almost in a plane. So that effective overlapping of orbitals can take place. Noted. Now next point is 11th point, the different types of patterns uh, which allows resonance to take place, or different structural patterns in which resonance can take place or conjugation can take place. ठीक है, पहला सिस्टम जो है that allow conjugation is a pi bond separated by a sigma bond and a vacant orbital. ठीक है, basically vacant orbital either with plus charge or without plus charge. मतलब पहले इलेक्ट्रॉन था वो लॉस्ट हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं था, राइट. वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब जैसे बोरॉन है, बोरॉन जहां भी बॉन्डिंग करता है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा जिसके बाजू में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर मान लो कोई पाई बॉन्ड आ गया, तो दिस कैन फॉर्म इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन पैटर्न. ठीक है, या दूसरा सिनेरियो है और यहाँ पर कोई कार्बन आया जिसके पास पहले से बॉन्ड था, एक Cl बॉन्ड था, ये टूट करके गया जिसकी वजह से यहाँ पर एक खाली ऑर्बिटल बन गया. बट ये खाली ऑर्बिटल क्या है, बॉन्ड टूटने के बाद बना है, इसकी वजह से इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज आल्सो. पॉजिटिव चार्ज कैरी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया, राइट. इज दैट ओके? नाउ anything like this, CH2 double bond CH with boron or ये phosphorus है, ठीक है. फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में ले सकता है. इसके पास वैकेंट ई ऑर्बिटल है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है. यहाँ पर कार्बन के पास, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है जिसकी वजह से उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है. इन एनी केस व्हाट इज हैपनिंग इज a pi bond is being separated by a vacant orbital through a sigma bond, ठीक है. pi, sigma and vacant orbital is the system where this delocalization is definitely going to take place, ठीक है.
Is that okay? So अब इसमें ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स, लगभग सारे ही पैटर्न डिस्कस कर दिए हैं जिसमें हो सकता है ओके। इसमें डिलोकलाइजेशन हो सकता है क्या? इन दोनों में डिलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है क्या? सर ए में नहीं है। ए में नहीं है, ठीक है, क्यों? सर पाई देन सिग्मा, then the charge is not coming next to the sigma. राइट, Pi sigma then sigma. हाँ, so therefore I mean the vacant orbital is not in vicinity with the pi bond, ठीक है, it is far away। अगर इस पर होता तो फिर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल था, क्योंकि तब इसका पाई ऑर्बिटल और ये वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकते थे, ठीक है, बट ये एक एटम के बाद में है तो इसके ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। सो द ऑर्बिटल्स इन विच द delocalization has to be take place must lie in vicinity with each other, they cannot be far apart, okay? Yes, sir. क्या हुआ, सॉरी? What about B? Will it form or can it show resonance? हाँ, should be। Yes sir, sir. नहीं, वो ये भी नहीं शो करता, ठीक है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो दोनों ऑब्वियसली दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए मतलब वो एक था ना कि पाई सिग्मा प्लस प्लस के लिए मैंने बताया ये प्लस जो है ये वैकेंट ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कहीं पर वो प्लस चार्ज है तो वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर प्लस चार्ज है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास साथ 3 बॉन्ड बनते हैं और एक लोन पेयर रहता है, जो लोन पेयर H+ को डोनेट हो गया है, जिसकी वजह से इसके पास एक प्लस चार्ज आ गया है, ये वाला प्लस ठीक है। This plus charge is not representing the vacant orbital, it is simply like जैसे H2O अपने 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को H+ को डोनेट कर देता है एंड इट बिकम्स H3O+ सिंगल लोन पेयर, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल को डिनोट नहीं करता है, ठीक है ना, देयरफॉर सेकंड वाले केस में भी देयर वोंट बी एनी रेजोनेंस, इज दैट ओके? Yes sir. सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव और वैकेंट, और एक्चुअली वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज लिख लोगे, या पॉजिटिव प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पर नोट में हियर द पॉजिटिव चार्ज means an orbital which is
affinity due to loss of electrons. ठीक है, किसके सिस्टम में ये शो करता है? तो I have this put it over here. बोरॉन BH2 है, पाई बॉन्ड के साथ में सेपरेटेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड BH2 है, यहाँ पर भी शो करता है। CH2 प्लस है, इट इज गोइंग टू शो, यहाँ पर नहीं शो कर सकता है, यहाँ पर भी नहीं शो करता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं शो करने के पीछे रीजन क्या होता है? डबल चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है एक सिंगल एटम। ठीक है, ये है हेक्साडाइन कार्बोकेटायन, हेक्साडाइन कार्बोकेटायन। ठीक है, और यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होता है। द डीलोकलाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल एंड एट हियर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट नहीं होगा, दिस कार्बन विल नॉट पार्टिसिपेट। सिमिलरली इसमें एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होएगा, यहाँ पर एक्सटेंसिव नहीं, यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइजेशन होएगा। बेंजीन रिंग एंड CH2 प्लस, इसमें भी डीलोकलाइजेशन होएगा। और यहाँ पर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, एंड ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है इस वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल और इनके ठीक है, इज दिस ओके? ये सारे कॉन्जुगेशन में रहते हैं और ये इसके साथ, so this is another valid system where conjugation can take place. Not only this, if we have a benzene ring and यहाँ पर BH2 रहे, ये vacant orbital है, this is going to participate benzene ring and NH2, sorry not NH2 but BH2। NH2 में भी होएगा बट वो दूसरा सिस्टम है, ये सेम सिस्टम नहीं है। यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल रहेगा जो पार्टिसिपेट करेगा। और पार्टिसिपेशन कैसे होता है? यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में दिस इज पाई बॉन्ड, द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड is parallelly aligned to the vacant orbital. Now there is instantaneous shift of electron density, the shared electron density to one of the atoms or orbitals, and obviously it will be on the central atom क्योंकि यहाँ पर density high होगा, so it may pounder towards the rightward side, एंड वो राइटवर्ड साइड में काउंटर होगा। बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कंसंट्रेट होता है तो, एंड दिस एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, देन दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल spread towards the right hand carbon, forming a pi bond. So bond has shifted from carbon 1 and carbon 2 to carbon 2 and carbon 3, and positive charge is subsequently shifted from carbon 3 to carbon 1. ठीक है, and the same thing is going to take place in all these systems, whether it is this, whether it is phosphorus, phosphorus में वैकेंट d ऑर्बिटल है इसलिए हो रहा है, बोरॉन में वैकेंट p है इसका बता दिया, यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, देयर इज अ वैकेंट p ऑर्बिटल, CH2 प्लस है तो, और एक इसमें से कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स,
वो एक ब्रेक करके यहाँ पर आता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है और बॉन्ड इन दोनों के बीच का यहाँ पे शिफ्ट होता है. सो आई विल डिस्कस दिस केस elaborately in maybe. अच्छा ठीक है, यहाँ पे बना के रखा है हमने. So it is this particular thing actually. बेंजीन के साथ ये वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज वाला, and this double bond is shifting between these two orbitals like this, and पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया. फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस ऑर्बिटल पर आएगा और बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन these two, and then this charge will shift on this carbon and the bond will shift between these two orbitals. So इसके बाद वाली शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई दी है इस फॉर्म में. बॉन्ड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया इस कार्बन पे. फिर फर्दर नेक्स्ट शिफ्टिंग में द पॉजिटिव चार्ज हैज कम टू दिस कार्बन एंड द बॉन्ड हैज शिफ्टेड बिटवीन दीस टू कार्बन्स. इज दैट ओके? और फाइनल स्ट्रक्चर में फिर से यही चीज बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर. अब नॉट एग्जैक्टली ये वाला, थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है, डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट ये रहेगा कि पहले डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे था, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. और सिमिलरली बोरॉन वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टू वन कार्बन एटम orbital of central carbon atom, which then gets donated towards boron, the vacant orbital, p vacant orbital of boron, and then it forms a pi bond between boron and carbon with a negative charge on. Basically extra electron density boron के पास आ गया, जितना उसके पास होता है उससे ज्यादा, therefore it is acquiring a negative charge, and ये वाले कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यहाँ पे क्रॉस इसलिए किया हुआ है कि this is not a valid canonical structure. ठीक है, this is a canonical structure, this is also a canonical structure, but this is not a valid canonical structure. ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके we have this final structure और resonance hybrid, जहाँ पर कार्बन कार्बन एंड कार्बन बोरॉन के बीच में there is going to be more than I mean सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम एक बॉन्ड हो. ठीक है, एंड एक स्ट्रक्चर में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो देयर विल अपीयर अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एंड बोरॉन दो स्ट्रक्चर्स में दो अलग अलग बोरॉन्स, दो स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर में बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे में न्यूट्रल चार्ज, देयरफॉर इट विल हैव अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, देखिए अगर दोनों स्ट्रक्चर में पूरा पूरा चार्ज होता तो दिस कार्बन वुड हैव बीन पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, बट दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल है और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज है, तो एवरेज क्या होगा? इट विल बिकम अ पार्शियल चार्ज. ठीक है, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव. सिमिलरली बोरॉन एक जगह पे नेगेटिव है, दूसरी जगह पर न्यूट्रल है, तो इस पर कैसा चार्ज लिएगा? ये this is first canonical structure and this is second canonical structure, और ये वाला है हाइब्रिड RH resonance hybrid. ठीक है, is this okay? यहाँ पर सल्फेट आयन के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. एक दो तीन चार पाँच छः
ठीक है, 6 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, वो 6 ड्रॉ किए हुए हैं. So I think I'll stop at this place today. I'll continue from here in the next lecture. बाकी के structures जो हैं जहाँ पर conjugation हो सकता है, that I'll discuss in the next lecture. आज के लिए यहीं पे रुकते हैं. और मैंने एक्चुअली लिंक भेज दिया, ये स्ट्रक्चर्स या तो नोट कर सकते हो तुम लोग,